class for the students of economics because we will tell you about the economic survey. It's one of the most significant document of Government of India. Which depicts the picture, the whole picture of Indian economy, come in the form of economic survey. The literal meaning is it's very clear to you all. The economic survey means the all data, all the present status of the different parts of economy, which is presented once in a year. That has already come yesterday in form of economic survey, which used to be tabled in the parliament, not broadcast or not come in the speech form. Rather, it's a text, it's a book. As your friend tells, this is the 720 page. Who was calling? 720 page, no? 724. So its size has minimized in comparison to last year's. It's a day by day it is being shortened. And once I was attending the press conference of economic advisor, he was telling me we are saving the money in making economic survey also. It used to be published in print form. More than 5,000 copies were being printed, but now that has been lessened. Only token 2,000 or 2,500 copies are being printed, and all journalists are given in the soft form, in the soft copy form. So, Government of India is trying to make the economic survey also economical by printing less and keeping the size less. Okay. The thing is that the economic survey, which has already been opened on your screen, and I would like to structure this lecture in two parts. First, I would like to show the full economic survey, and then I would like to analyze some sectional part, means the different parts of Indian economy, which has been highlighted on the different press releases of Press Information Bureau. So, you can say the different symbolism of Indian economy has been shown on the cover page, like the shipyard, like the aeroplane, civil aviation, and the different results is shown by agriculture, industry, services, activity, and all. I would like to tell you this is the survey for the year 25-26, means it will continue till 31st March, and it is just an estimation, it's not a final result, it may differ also. When the last quarter result come in the year in the month April, then you will be knowing that what is the exact growth rate in the fourth quarter of Indian economy. Already third quarter result has come. So this is the estimation, and when tomorrow, day after tomorrow, the budget will come, they will also tell what would be the growth rate. And budget normally gives 3 years picture. The current year means 2025-26. This is called current year. This would be called current year, and the upcoming year would be 26-27, which will start from 1st April. And last year means the 24-25. Maybe you may be getting some actual result. Because normally there are three kind of estimation are being done: budget estimate, revised estimate, and actual happening. तो तीन तरह के रिजल्ट आते हैं. उसमें ये होता है कि उसको बीई बोलते हैं, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट को बोलते हैं आरई, और एक्चुअल को बोलते हैं कि जो ऑलरेडी हैपेंड, दैट इज फाइनल. So in this way, things are being presented, whether you see economic survey or you see the document of general budget. Generally, this economic survey is Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs. You must know that Ministry of Finance has 5-6 departments: Banking and Insurance Division, Economic Affairs Division. There is also Budget Division. There is also another department called Department of Revenue, जिसमें कि इनकम टैक्स और जीएसटी और वगैरह वगैरह सारे डील होते हैं. बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में बैंक और इंश्योरेंस का होता है. इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में ही बजट बनता है और सारी पॉलिसी जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं. तो दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस.
उसके अलावा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो भी होता है, जो कि एक अलग अलग जो इकोनॉमिक क्राइम है उसके बारे में सब बताते हैं। This is the content which you can go through on your screen by downloading the economic survey document. इसमें जो चैप्टर दिया हुआ है पहला ये है स्टेट ऑफ इकोनॉमी पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर, क्योंकि ग्रोथ रेट इज गोइंग गुड। पहले भी इसको लेकर फॉरकास्ट किया गया और इकोनॉमिक सर्वे का रिजल्ट जो है ऑलरेडी लोगों ने ऊपरी तौर पे देख लिया। दूसरा फिजिकल डेवलपमेंट ऑथराइजिंग स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब यह है कि सरकार के जो रेवेन्यू इनकम और जो एक्सपेंडिचर उसमें कितना बैलेंस है एंड हाउ दे कैन बी मैनेज और हाउ दे हैव बीन बैलेंस्ड। उसमें आपको फिजिकल डेफिसिट और बजट डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट भी आप जो है बजट क्लास में भी जानेंगे और कुछ आज भी जानेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट एंकरिंग स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। मतलब ये है कि बैंकिंग का ये मामला है कि बैंक की मनी कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है और मनी का डिमांड कितना है, उसी हिसाब से मनी की जो पॉलिसी है चीप मनी पॉलिसी और एक तो है उसको एक बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी, मतलब कि महंगी मुद्रा नीति और एक सस्ती मुद्रा नीति। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड चीप मनी पॉलिसी। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एफडीआई एफआईआई और काइंड ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो बाहर से जो चीज होता है वो एक्सटर्नल सेक्टर। इन्फ्लेशन दिस इज मैटर रिलेटेड टू इंटरनल सेक्टर, यह भी मनी का डिमांड और सप्लाई और उसके हिसाब से इसको आप महंगाई दर भी कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट को आप दूसरे अर्थ में महंगाई दर भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट रेजिंग प्रोडक्टिविटी स्ट्रक्चरिंग इनकम एंड इंक्लूसिव। सर्विसेज का ये सर्विस सेक्टर में ये सर्विसेज सेक्टर का जो है इसमें आपको अलग अलग पार्ट मिलेगा। फिर जो है इंडस्ट्री में नॉर्मली बांटा जाता है मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है रियल एस्टेट, यही एक तरह से मेन डिवीजन इसी में होता है। रियल एस्टेट नहीं ज्यादा कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां जो इंडियन इकोनॉमी में अब कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि यह भी जरूरी है फॉर द हेल्थ, फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस। एजुकेशन एंड हेल्थ दिस इज पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर बट इट्स आल्सो ए बिग इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, गेटिंग स्किलिंग पॉइंट, ये सब यू मे बी नोइंग दिस। रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, from import substitution to strategic resilience and strategic indispensability. This tells about self-dependence and Atmanirbharta. Also, Swadeshi has been mentioned. Building strategic resilience and strategic indispensability, the role of the state, the private sector, and the citizen. ये एक तरह से नया चैप्टर है। तो इसमें इसका कोई रिमोट भी है क्या? इसका नीचे ऊपर करने का रिमोट भी कीपैड मुझे याद आ रहा है, तो मैं वहां चल जाता है। As the preface says, the year 225 has begun with one set of expectation and ended with another of the world. India included, however, a notable contributor has been India's strong macroeconomic performance. Macroeconomic performance, I have told you. Can you tell me what is called macroeconomic? Anybody? ब्रॉडर टर्म, राइट। तो उसमें क्या लेते हैं? ग्रोथ रेट लेते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन लेते हैं, इंडस्ट्री का ग्रोथ लेते हैं, तो इस तरीके का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी लेते हैं। तो कुल मिलाकर के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब ये है कि ब्रॉडर टर्म में हाउ द इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग।
आप एक बार जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, ए विक्टिम ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटेजिक पावर गैप। जियोपॉलिटिक्स का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो countries are imposing tariff on other country, they are just creating bottleneck and different kind of hurdles. So that is called geopolitics. When it is being done for the economic issue, then it hampers the economic growth of the respective country. So India faced this geopolitics because India was imposed a hefty 50% tariff on behalf of US. So India faced this situation. Our exports got some bit shrink because of this global scenario. It is telling about the global scenario in the year 26. मैं केवल सब हेड सब आपको निकालता हूँ। रनिंग ए मैराथन एंड स्प्रिंट ऑफ द सेम टाइम। This year, government has done a very remarkable progress, that is on the front of fiscal management. Because after Corona, we have more expenditure than our income, than our revenue. So government has to hike its fiscal deficit, and there is one act that is called FRBM. You must know this. Being a student of economics, you must know what is called FRBM. Fiscal responsibility and budget management. This is an act of Government of India, which is a binding as per the instruction of World Bank and IMF. Every country has to follow this fiscal responsibility and budget management. What it says, fiscal deficit must not be more than 3.5%. ये benchmark बना होता है 3.5% of GDP। तो 3.5%। पहले एक चीज और बता दूं, I will repeat it in the budget class also. What is called fiscal deficit? Do you know about this? What is called fiscal deficit? सर एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है। हाँ तो ठीक है, लेकिन एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि इनकम और एक्सपेंडिचर होता है जिसको कि सरकारी लैंग्वेज में रेवेन्यू बोलते हैं। इनकम को रेवेन्यू, तो ये इनकम भी जो है सरकार का दो तरह का होता है। एक होता है टैक्स इनकम और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। हालांकि ये इनकम नहीं है, दिस इज कॉल्ड बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट बोरोइंग, यानी सरकार जो उधार लेती है, बैंकों के थ्रू लेती है, फाइनेंस मार्केट के थ्रू लेती है, कैपिटल मार्केट के थ्रू लेती है, बॉन्ड के जरिए लेती है, तमाम तरीके से लेती है। आप यह कर सकते हैं कि जो ईपीएफओ में पैसा जमा होता है या अलग अलग फंड में जमा होता है, वो भी सरकार के लिए एक तरह से वो बोरोइंग है या कैपिटल रिसिप्ट है। इसको बोलते हैं टैक्स इनकम और इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो इसमें सारे लोन, बोरोइंग और सरकार के पास जो है डिपॉजिट विद गवर्नमेंट। और टैक्स रेवेन्यू जो है ना, वो भी दो तरह का होता है। एक को आप बोल सकते हैं ब्रॉडर टर्म में टैक्स रेवेन्यू है, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू तो आप नॉर्मली मोटे तौर पे समझते हैं व्हाट इट इज कॉल्ड, बट नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, जो टैक्स फॉर्म में नहीं आता, लाइक पेनाल्टी, लाइक कोर्ट फी, like several kind of fees, license fee. So this is categorized under non-tax revenue. And the tax revenue have also two types. एक होता है direct tax और दूसरा होता है indirect tax. तो
डायरेक्ट टैक्स ये मीन्स मतलब ये है कि द टैक्स विच इज बीइंग इम्पोज्ड ओवर द पर्सन ही हैज टू पे ऑन, he cannot मतलब कि शिफ्ट his tax, he cannot transfer his tax to other person, he has to pay himself. तो डायरेक्ट टैक्स में जनरली क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरा जो है कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि कंपनी पे लगाया जाता है, इनकम टैक्स इंडिविजुअल पे लगाया जाता है और प्रॉपर्टी टैक्स ओनर पे लगाया जाता है। ये सब है डायरेक्ट टैक्स। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में है द टैक्स व्हिच इज बीइंग इम्पोज्ड ओवर द पर्सन, ही कैन ट्रांसफर इट टू अदर पर्सन, मतलब कि नॉट नेसेसरी कि ही विल पे ऑन इट, नहीं, he will pay it but he can recover the tax amount from the other person. Like indirect tax का मतलब क्या होता है? सेल टैक्स, कि it has to be paid by shopkeepers or shopkeepers will collect the tax from the consumer, from the purchaser, he will just transfer it to other person, so that is called indirect tax. तो इनडायरेक्ट टैक्स में मोस्टली जो आता है वो सेंटर की तरफ से और स्टेट की तरफ, तो सेंटर जो है क्या लगाती है? कस्टम टैक्स। इट इज ए प्रेरोगेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, नो स्टेट गवर्नमेंट कैन लेवी कस्टम्स, चाहे वो बॉर्डर स्टेट क्यों नहीं हो, वो कस्टम नहीं लगा सकती, ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इम्पोज दिस टैक्स। सेकंड है एक्साइज। तो एक्साइज भी दो होता है, एक सेंट्रल एक्साइज, एक होता है स्टेट एक्साइज। तो ये कस्टम और एक्साइज दो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो है पहला है सेल टैक्स, दूसरा है प्रॉपर्टी सेल टैक्स जो प्रॉपर्टी बिकती है उसमें, और तीसरा है रेवरी पे यानी जिसको आबकारी बोलते हैं। ये तीन जो है सोर्स ऑफ जो है स्टेट के जो है मेन इनडायरेक्ट टैक्स है। नाउ excise and sale tax, they both have been clubbed into GST, goods and services tax। और पहले जो है GST के पहले सर्विस टैक्स भी होता था, that is also indirect tax being imposed by central government। तो GST आफ्टर बीइंग GST जो है सेंटर और स्टेट दोनों जो है रेवेन्यू को बांटते हैं। तो इसमें क्या है कि जो FRBM एक्ट में जो बता रहा था 3.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है, मैंने इसलिए एक बार चीज बताया कि फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट के जितने टैक्स रेवेन्यूज हैं, टैक्स रेवेन्यू में जितना है चाहे वो नॉन टैक्स हो या टैक्स हो, माइनस कैपिटल रिसीट, ये कैपिटल रिसीट उसमें ऐड नहीं होता, केवल टैक्स इनकम जितने हैं, टैक्स इनकम एंड नॉन टैक्स इनकम, ये इनकम साइड में हो गया। और एक्सपेंडिचर साइड भी दो तरह का होता है, एक प्लान एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा है नॉन प्लान, जिसका मतलब होता है कि जो एक तरह से मेंटेनेंस कॉस्ट है, जैसे कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर होता है। नॉन प्लान में होता है कि जैसे ये ऑफिस, ये जैसे इस बिल्डिंग बन गई कॉलेज की, तो ये क्या हुआ? प्लान एक्सपेंडिचर में हुआ। लेकिन इसमें जो टीचर बहाल है उनको जो सैलरी दी जाती है दैट वुड बी कॉल्ड नॉन प्लान, यानी कि उसका एक मेंटेन, जैसे सड़क बना दी तो सड़क जो है प्लान एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन सड़क का जब घिसावट होगा, उसकी मरम्मत होगी, उसकी देख रेख होगी, वो होगा नॉन प्लान। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, कैपिटल बनता है, नया नया बिल्डिंग, रेलवे, बिजली, टेलीकॉम, पेट्रोलियम, माइंस, मिनरल्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स वगैरह वगैरह, ये सब प्लान एक्सपेंडिचर या कैपिटल में आता है। और नॉन प्लान में क्या आता है? मेन खर्चे बताइए कोई आपको सोच करके। डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सब्सिडी, ये सब जो देते हैं ये नॉन प्लान। तो जो फिस्कल डेफिसिट है कि सरकार की जितनी आमदनी है टैक्स से और सरकार के लिए जो दोनों खर्चे हैं प्लान और नॉन प्लान, जब इसको ये एक्सीड करता है तो उतना उतना जो है एक्स्ट्रा जो होता है वही फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। डेफिसिट होता है हमेशा, कभी सरप्लस नहीं होता, फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी कि सरकार के ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर और सरकार के ऑल टाइप ऑफ ओनली टैक्स रेवेन्यू में जब हम माइनस करते हैं ऑल टाइप एक्सपेंडिचर को, दैट बिकम्स फिजिकल डेफिसिट। और दैट फिजिकल डेफिसिट वाज वेरी हाई बिकॉज़ देयर वाज नो अर्निंग ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड
it has gone up to 6.5 to 6.8% of total GDP. But that has been reduced on year-to-year basis, and now this year it is likely to be matched with what government has fixed the target, that is around 4.4% of GDP. But when it will become 3.5%, then it will totally follow the FRBM Act, फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये बड़ी मैंडेटरी है, आप लोगों को ये टर्म जानना चाहिए, नोट डाउन इट, FRBM, फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। दूसरा ये है फिजिकल डेफिसिट, टोटल टैक्स इनकम में सरकार के टोटल खर्च मतलब कि प्लान्ड एंड नॉन प्लान, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान जो खर्च होते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो प्लान खर्च होते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आमतौर पे होता क्या है कि सरकार जो है वह विकास कार्यों के लिए, डेवलपमेंट वर्क के लिए मार्केट बोरोइंग पर डिपेंड करती है। जो पैसा वो बाहर से उठाती है, बैंकों से लेती है, कर्ज लेती है, वो उसको डेवलपमेंट पर खर्च करती है। और जो उसको टैक्स से इनकम होता है, दैट usually government spends on all kind of administration, all kind of defense, all kind of subsidy payment and all kind of pension, ये सब के खर्चे बने हुए हैं। बजट के दिन इसका बाकायदा एक ग्राफ बना करके आपको बताया जाएगा कि कोई भी इनकम होता है तो कितना परसेंट किससे होता है, कितना परसेंट किससे होता है सरकार का इनकम, और जो एक्सपेंडिचर होता है वो कितना परसेंट किसको जाता है, दैट इट इज बीइंग टोल्ड। So today we will not discuss in a very enlarged manner, rather we will be confined to only the economic survey text, so that you can have exposure of the whole economy. तो गवर्नमेंट जनरल मैनेजमेंट जो डेफिसिट है, क्योंकि सरकार की ग्रोथ रेट ज्यादा रही है, तो ग्रोथ रेट होने की वजह से सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा है। और हर साल गवर्नमेंट तय करती है कि हमारा इस बार इतना डायरेक्ट टैक्स आना चाहिए, इतना इनडायरेक्ट टैक्स आना चाहिए। फिर बजट के समय रिवाइज भी किया जाता है। कई बार क्या होता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है तो उसको रिवाइज करके खर्च बढ़ाया जाता है, या कई बार खर्च कम भी होता है, बजट का पैसा रखा ही रह जाता है और खर्च नहीं हो पाता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एक्सटर्नल डेफिसिट, एक्सटर्नल डेफिसिट मतलब वही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो घाटा होता है। जैसे कि हमारा इंपोर्ट नॉर्मली ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, क्योंकि वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी and our import gets high. Why? Because we have to import technical knowledge, machinery. So this we think required. We are not self-dependent on the production of those items. So we have to import it in a massive manner, and so our import bill becomes very high. Surplus service trade matters. क्योंकि हमारा BPO जो सर्विस सेक्टर में आता है, उसको अमेरिका ने उस पर टैरिफ नहीं लगाया है, तो उस पर ज्यादा हमें प्रभाव नहीं पड़ा। गेटिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी राइट, व्हाट यू मीन बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी? आई हैव टॉट यू कि वी हैव 3 or 4 or 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1948, 1956, then we have a policy in a slide for 77, 1980, then 1991, and then 2014 when Make in India and PLI, production linked incentive, was brought. तो गेटिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी राइट का मतलब यह है कि इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव देना। एंड यस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट लेवल प्लेइंग फील्ड। इट मींस व्हाट? इट मींस कि इंसेंटिव गिवन इक्वली टू ऑल प्लेयर। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड नो इम्पार्शियलिटी इन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू एनी प्लेयर। इट मस्ट बी इक्वल एंड यूनिफॉर्म इंसेंटिव फॉर ऑल प्लेयर, दैट इज कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत यही किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा उनको टेक्निकल हेल्प दें, फाइनेंशियल हेल्प दें, मार्केटिंग का हेल्प दें, उन्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इट हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर टर्म, दैट इज कॉल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। द एंटरप्रेन्योरल स्टेट एंड मोर, एंटरप्रेन्योरल का मतलब यह है कि कोई आदमी बिजनेस पूरा खोलने के लिए छूट पाए, आजादी पाए और वो इंटरप्राइजिंग हो। जैसे कि स्टार्टअप जो है, इट्स आल्सो काइंड ऑफ अ माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप which is being implemented in a very high speed. Upgrading India's potential growth. We are opening up very new
vistas of new economy, that is called green hydrogen, that is called green energy, that is called new media, that is called several platform of digital platform like DG Ed, DG Health kind of thing are just coming out, and they have an enormous scope of nurturing our economy, that is called gig sector also. Technology. आप देखते चलो सब तो बंडल कर नहीं सकते 1.5 घंटे में, वो प्रीफेस था एक तरह से, ये सब टर्मिनोलॉजी है। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग अगर देख लो तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग यंग स्टूडेंट हो, आपको इकोनॉमिक्स के जब आप हैबिट अपनाएंगे तो आपको बहुत सारी स्कीमें जाननी पड़ेगी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जाननी पड़ेगी। तो आप इसको डाउनलोड करिए और इसमें समय दीजिए, केवल मेरे पढ़ाने से आपका ज्ञानार्जन नहीं होगा, यू शुड हैव टू रीड ऑल्सो। देखो AGCRI एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने पहले भी कहा हुआ है इस बारे में। ये सब चीज आप लोगों को जानना पड़ेगा। ATF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एक ATF होता है एयर टरबाइन फ्यूल, तो अलग अलग भी अर्थ होते हैं, एक एप्लीकेशन के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। APL एबव पॉवर्टी लाइन, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये सब चीज आप लोग देखिए, आप लोग के लिए अच्छा होगा। मैं एक एक चीज ये नहीं बता सकते, समय एक तरह से बेकार होगा, असली चीजें जो है वही उसमें मैं अपना समय लगाऊं तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो ये सेवरल एप्लीकेशन आर गिवन, यू हैव टू गो थ्रू इट। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, तो इस टाइप का जो एप्लीकेशन है आपको इकोनॉमिक्स में जानना होगा। NASSCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ ये सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, बहुत एप्लीकेशन। S&P ये स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग, ये रेटिंग एजेंसी है दुनिया की, ये टाइम टू टाइम इट कम्स एंड ब्रिंग्स फोरकास्ट रिगार्डिंग एनी नेशंस। तो जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर यस्टरडे कि जनरली देयर आर 4 पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू द प्रीफेस एंड ऑल काइंड ऑफ the noteworthy points of the economic survey, but in general economic surveys are being analyzed in form of primary sector agriculture, in form of secondary sector industry has also 2-3 part, infrastructure, real estate and manufacturing, and then we comes on the tertiary sector, that is called service sector has also 3-4-5 part, tourism and hotel, transportation, information technology kind of thing। and I already told you कि जैसे सपोज दैट कि एविएशन इज एन इंडस्ट्री, तो एरोप्लेन जो है वो कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम है, एयरपोर्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट एयरलाइन जो चलती है दैट इज सर्विस। जो एयरलाइन के जरिए सर्विस, जो एयर इंडिया या इंडिगो या जो भी है उसके जरिए जो हम चढ़ते हैं तो दैट इज सर्विस। सेम वे रोड इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर, बट द बसेस दैट इज ए कैपिटल गुड्स, बट जो बस का जो ऑपरेशन है दैट इज सर्विसेज। ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि हॉस्पिटल में अगर कोई हॉस्पिटल बनता है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, बट द डॉक्टर्स हु आर बीइंग अपॉइंटेड देयर दे आर सॉफ्टवेयर, एंड द सर्विसेज व्हिच आर बीइंग रेंडर्ड अपॉन that will come under services। the same way in education also। अच्छा एक चीज और जानिए, आपको मैंने बजट डेफिसिट बताया, यू टेल मी व्हाट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि आप लोगों का मेन काम नॉलेज आपका बढ़ाना है ना कि मैं अपनी थीसिस दूं, उसके लिए तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप लोगों के सामने मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक नॉलेज हो इसी बारे में, और एक बार की चीजें फाइनल होती नहीं है जब तक 2 साल में रिपीट करो। यू टेल मी व्हाट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट रहता है, कैपिटल अकाउंट रहता है, तो करंट अकाउंट एक करंट अकाउंट रहता है और दूसरा कैपिटल, मतलब 2 पार्ट में रहते हैं हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रहता है, ठीक है कैपिटल। ठीक है। जैसे तो करंट में रेवेन्यू वाला जाता है, कैपिटल में कैपिटल। करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक है, लिटरली यू आर वेरी राइट। करंट अकाउंट डेफिसिट का सीधा मतलब है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इम्बैलेंस, जो ट्रेड डेफिसिट जिसको बोलते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट व्हिच यू टोल्ड, दैट्स ट्रू, क्योंकि कैपिटल रिसीप्ट में क्या है कि विदेश से बहुत कुछ
हमें जो है ना उपहार मिल गया, कोई चंदा में दे दिया, कोई सौगात दे दिया, कहीं से लोन आया, कहीं से इन्वेस्टमेंट आया, कहीं से कई सारी चीजें हो, तो ओवरऑल इट इंक्लूड्स अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि एक्सटर्नल रिसिप्ट, बाहर से हमें क्या क्या मिला। बट when we will talk categorically about import and export, हमने कितना सामान बेचा, एक्सपोर्ट किया, और कितना सामान वहां से खरीदा, then the gap between export and import is called current account deficit और trade deficit। तो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वह भी एक तरह से जीडीपी में टर्म किया जाता है कि कितना का घाटा हुआ। तो अभी बताया जाता है कि 1.2 और 1.3% ऑफ जीडीपी आवर करंट अकाउंट डेफिसिट। लेकिन फिजिकल डेफिसिट जो है वो मैंने बता दिया। तो करंट अकाउंट डेफिसिट ये याद रखिए आप लोग कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी डेफिसिट है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि टोटल बाहर से इनकम और टोटल जो है हमारा खर्च, मतलब टोटल हमारा कहाँ कितना बाहर से आया, यानी हमारी देनदारी, और जो हमने उनको दिया वो हमारी लेनदारी। तो इस आधार पर जो है ये चीजें होती है। आप लोग बल्कि अगर आप डाउनलोड किया हो तो आप लोग जो है स्क्रीन पर देखते रहिए, और जहाँ समझ में नहीं आए वहां आप लोग पूछिए। स्टेट ऑफ इकोनॉमी पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर, ये तो मतलब ये है कि देयर इज अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज द हाईएस्ट, मतलब कि ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट अमंग द मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये तो ये फैक्ट है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्रेगमेंटेलिटी एंड डाइवर्जेंस। जीडीपी का फोरकास्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट एडवांस एस्टिमेट जो आया है उसका ऊपर दिखाया हुआ है। ये ग्लोबल ग्लोबल 3.3% है। नहीं, ये ग्रोथ ये अच्छा इंडिया का inflation, in terms of inflation, the global rate is 4.2, whereas India has only 2.1 in the month of January, and in January 26 it is 2.5, whereas the global rate is 4.1। देखिए, 3 country has been shown, China, Indonesia, India। So India is representing the green part, and Mexico has the highest growth perhaps, like EMDE, इसका full form देखना होगा, I am also EMDE। anyway आप लोग देखो, इसमें जो नहीं समझ आया ये second graph is showing that the global deteriorating global FDI growth। The resurgence of economic statecraft and the imperative of the achieving the strategic resilience and independence।
Even as the global economy navigates uncertainty, India continues to chart a strong growth path as reflected in the first advance estimate for financial year 26 released by the Ministry of Statistics. These estimates मैंने इनकम नेशनल इनकम के क्लास में भी ये डाटा दिया था आपको. Place the GDP growth rate at 7.4% and the GVA growth rate of 7.3%, surpassing earlier projection by various agencies and our own estimate in the economic survey of 24-25, reaffirming India's status as the fastest growing major economy for the fourth consecutive year. On the demand side, domestic demand continues to another anchor growth supported by a strengthening momentum in capital formation. On the supply side, manufacturing activity has gained traction and services continue to drive overall expansion, led by steady performance in trade, transport, and financial and professional services. ये सब services में आएगा. The following subsection examines the sectoral composition and drive of growth. देखिए एग्रीकल्चर ये सबसे मेन है, ये आपको ध्यान चाहिए क्योंकि मोटे तौर पे आपको समझना है तो इसी को देखना होगा कि जो सेक्टर मैंने कहा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज में ही मोस्टली बांटा जाता है. तो आप यह देखिए कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 3.1 का है प्री एस्टिमेट, जो 4.6 का है हाफ H1 मतलब कि पहले हाफ 3.6% का है और 25 यानी कि पहले हाफ 25 में 2.7 का था और इसमें 3.6 का होगा. पोस्ट एस्टिमेट मुझे लगता है यही होगा पीई का मतलब देखना पड़ेगा उससे. तो 4.6 हुआ और इसमें थोड़ा सा घटेगा 3.1. इंडस्ट्री 6.1 25 में हुआ और इस बार जो है 4.6 का उम्मीद है. नहीं एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री का 6.17 और 5.9. माइंस एंड क्वारी, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ जो है ना लाइकली टू बी मोर 9.4%. सर्विसेज में ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, इट इज आल्सो लाइकली टू ग्रो इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर. एक्सपेंडिचर कंपोनेंट में आएगी. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7 के आसपास है, गवर्नमेंट का जो है 2.3 के आसपास है. टोटल जीडीपी का होगा ये. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इतना, एक्सपोर्ट्स जो है जीडीपी का 6.3 और जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो 7.4 का जो है एक्सपेक्टेशन है. फाइनली इट विल बी नोन इन द लास्ट क्वार्टर रिजल्ट ऑफ current financial year, which will likely to come in the month of April or May. Sectoral contribution to GDP. मैंने पहले कहा था कि agriculture contributes only 15% of GDP, that is still there. Industry 25-24, that is also around that, and the whole service sector 51.1. Expenditure component. Gross borrow में 61.5, consumption गवर्नमेंट का 9.9, फिर बाकी जो बचा वो कैपिटल फॉर्मेशन है और एक्सपोर्ट का 21.5. डिमांड साइड डोमेस्टिक ड्राइवर एंकर्स जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 26. What do you mean by this? Anybody? Demands जो है that drives and anchors GDP growth in financial year 26. Can you tell anything about this? This is related to GST cut, which was done in the month September last year.
And since then, 22nd September it was implemented, the GST cut. After that, we have a huge demand in the domestic sector. People started to purchase more and more because of lowering prices of several items. मोस्टली जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आइटम है, ऑटोमोबाइल है, या कई सारे और सारे जो आइटम्स हैं, इवन के फूड एंड ग्रोसरी, like of so many things were either exempted from the GST or they have been lower. इवन की जो इंश्योरेंस सेक्टर है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी एलिमिनेट कर दिया गया उसके GST. तो it मतलब कि it brought a big boost to the domestic demand. और अकेले दिवाली के फेस्टिव सीजन में 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ की जो है ना एक्स्ट्रा परचेज हुई मार्केट में. तो जब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ा तो इंडस्ट्री को एक तरह से उनमें एक डायनेमिज्म आ गया, प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ गया, सारा जो डायनेमिक्स जो है ना ग्रोथ का भी बढ़ गया. और उसका नतीजा ये आया है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में जो हमने 6.5% का केवल टारगेट रखा था, दैट इज गोइंग टू मतलब कि become 7.4 or 7.5%. Yesterday, Finance Minister has also told that the growth rate is likely to happen between 6.8% to 7.2%, whereas the projection is around 7.4, or the economic survey itself says that the growth rate likely to be even around 7.5% or more. देखिए यहाँ पर एक नया फिगर जो है ना इंडियन इकोनॉमी में लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन. तो इट डिनोट्स कि हमारा कितना परचेजिंग पावर है, हमारा कितना डिजिटल करेंसी ना मत कहिए, इसे डिजिटल ट्रांजैक्शन कहिए. तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल जो करेंसी की जो डिमांड है वो घट जाती है. तो अब ये नया आ रहा है कि पिछले 4 सालों में वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन. तो इन दैट मैनर द फिगर हैज कम आउट कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो रिजिलिएंट डिमांड का वो ईयर टू ईयर ग्रोथ बता रहा है कि अर्बन एरिया में जो डिमांड है वो यूपीआई के जरिए जो है 33%, और एफएमसीजी वॉल्यूम से 5.6%, पैसेंजर व्हीकल सेल्स का डिमांड दिखा रहा है कितना बड़ा, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर, एफएमसीजी वॉल्यूम सेल्स. रूरल एरिया में ये सब जो है ना अर्बन एरिया के मेन डिमांड है, जो ऊपर जो 4 कैटेगरी दिया है. और रूरल एरिया का क्या है, 2 व्हीलर व्हीकल सेल्स, 3 व्हीलर एंड ट्रैक्टर. ट्रैक्टर का भी एक फिगर आया था कि इस बार रिकॉर्ड ट्रैक्टर की बिक्री हुई है क्योंकि जीएसटी उसका काफी घटा दिया गया है, और उसकी वजह से इस बार 13 लाख जो है रिकॉर्ड ट्रैक्टर बिके. तो ये सब है, आप खुद भी देखिए, एक ही चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा. जब तक until unless you read the whole document you can't have understanding of several economic terminology and all kind of perception and perspective related to Indian economy. ये एक्सपोर्ट प्री पैंडेमिक का एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखा रहा है, और ये अभी इधर का दिखा रहा है. Industry and services led supply side of growth of financial credit. सप्लाई साइड और डिमांड साइड को आप समझ रहे हैं ना. डिमांड जो कि हम लोग डिमांड करते हैं, और सप्लाई जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबिलिटी होती है. ठीक है, हम समटाइम वी से दिस इज सप्लाई मार्केट और दिस इज डिमांड मार्केट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सप्लाई मार्केट और डिमांड मार्केट को लेकर के आप लोग कुछ बताइए. टेल मी फ्रॉम द बैक साइड, आप बताओ क्या व्हाट इज कॉल्ड डिमांड मार्केट एंड सप्लाई मार्केट. Suppose for example in the harvesting season, agriculture harvesting season,
we have a huge supply of food grain items. In the season of vegetable, we have a huge supply of gobi, potato, onion, etc. And the milk kind of thing, milk is like an industrial product. It's not a seasonal product. It's a daily to daily. It's a daily product like industrial product. जैसे इंडस्ट्री में रोज माल बनता है, लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं बनता. एग्रीकल्चर में सीजनल होता है. तो सीजन साइड में व्हाट यू सी कि एग्रीकल्चर बिकम सप्लाई साइड मार्केट. मतलब कि केवल सप्लाई है, नॉट नेसेसरी कि मतलब कि ऑल आइटम्स विल बी सोल्ड. क्योंकि एक साथ अगर करोड़ों टन अनाज पैदा होगा तो एक दिन में तो सबकी बिक्री होगी नहीं. इट विल टेक 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, मतलब अप टिल द नेक्स्ट सीजन. तो देन इट इज कॉल्ड सप्लाई मार्केट. लेकिन जब फेस्टिव सीजन में जब क्या होता है कि सब लोग अचानक डिमांड करते हैं, तब वो क्या हो जाता है, वो डिमांड साइड मार्केट हो जाता है. यानी लोग केवल खरीदना ही खरीदना चाहते हैं, पर्व में, त्योहार में या कोई खास सीजन में कुछ इस तरीके. तो देन इट बिकम डिमांड मार्केट और सप्लाई मार्केट. यानी कि जहाँ सप्लाई का ज़्यादा वर्चस्व हो तो सप्लाई मार्केट है, जहाँ डिमांड का ज़्यादा हो डिमांड मार्केट. और इन जनरल प्रोडक्ट जैसे मिल्क आइटम है या जितने ये सब जो किराना और खुदरा के जितने जो सामान है, खास करके किराना वाले, वो उसका क्या है कि उसका मार्केट स्टेबल होता है. दे डे टू डे दे आर बीइंग डिमांडेड एंड डे टू डे देयर सप्लाई आर मेंटेन, सप्लाई चेन्स आर मेंटेन. High frequency indicators such as standing of industrial activity. ई-वे बिल जनरेशन, ये जीएसटी से जुड़ा हुआ टर्म है. जो जीएसटी का वाउचर कटता है उसके लिए ये टर्म यूज होता है ई-वे. उसका कुछ अलग अलग वो है. सर्विसेज सेक्टर परफॉर्मेंस, इसमें देखिए कि इस बार जो है जो तीन आपको टेबल दिखा रहा है, तीनों टेबल के हिसाब से 26 में we have a likelihood of 9.3% growth. In terms of industry, trade and hotels, transport, communication, it's also part of services. It is likelihood of 8.0%, less than previous rate. And financial and real estate, it has more growth than last 9.9. And public administration, defense and other services, it is 9.7. It's all part of services. रेलवे का फ्रेट एंड टैरिफ, होटल का, एयर कार्गो का, सबका अलग अलग डाटा है. यानी कि सेक्टोरल एंड सेक्शनल मतलब कि डिस्प्ले ऑफ ऑल फिगर्स held in 1 year that is being presented in economic survey. It's a very important document. Most of the writers, authors and professors, they quote economic survey because it's a bunch of all data related to different sector of Indian economy. ये जो आपको जो स्क्रीन डाला हुआ है, ये कोई नया पॉलिसी डिसीजन है या कुछ नया ऐसा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जिसको हाईलाइट किया गया है. Expanding the data frontier through new surveys. More frequent and granular statistics. Modernizing survey and strengthening, यानी कि सर्वे और स्टैटिस्टिक्स को भी मॉडर्न बनाया जा रहा है और इसको यूनिफॉर्म भी बनाया जा रहा है. एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है. Inflation dynamics in the economy. I told you yesterday that we have a very lower rate of inflation in comparison to last 4-5 years in terms of both retail price and wholesale price. The diagram already says that this year we have a very lower inflation rate. अच्छा, इसमें आपको पब्लिक फाइनेंस के कितने स्टूडेंट? तो आपको ये बजट फाइनेंसिंग पढ़ाया गया होगा सर. करेंटली तो मतलब जो टैक्स क्या है, किसका किस में है, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या हो गया, करेंटली वो मॉड्यूल चल रहा है, प्राइमरी नॉलेज चल रहा है. बजट डेफिसिट नहीं पढ़ा अभी तक नहीं गया, बट है. लेकिन एक लाइन आप लोग जान लीजिए, एवरीबॉडी शुड नो व्हाई बजट डेफिसिट इज बीइंग मतलब कि अडॉप्टेड इन डेवलपिंग कंट्री. द रीजन इज मतलब ये इन्फ्लेशन बढ़ाता है. जब आपकी आमदनी होगी 4 अरब और खर्च करोगे 6 अरब, तो 2 अरब आप वो क्या करोगे, लोन लोगे.
या विदेश से लोन लो या घर के लोगों से लोन लो, तो आप पर वो देनदारी हो जाएगी कि उस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, उसी में कमाना है, उसी में आपको इंटरेस्ट पेमेंट देना है। तो उसके लिए क्या होता है कि बजट डेफिसिट का मतलब है कि जितनी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा आपको खर्च करना है। और डेवलपिंग कंट्री जनरली अडॉप्ट सच पॉलिसी only because they have to expand their developmental activity, and that's why they go for deficit financing, क्योंकि कोई भी विकासमान अर्थव्यवस्था, ग्रोइंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, इट नीड्स मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट. If you do not have capacity, despite that you have to take loan from the outside, make investment in the economy and try to earn more and more and just repay the money which you have taken as a loan. So that is called budget financing. That is generally being adopted in most of the developing countries, and we have also adopted for the last 80 years. Sometimes we have a higher budget deficit, sometimes we have a moderate budget deficit, and sometimes we have a lower. But when you keep lower budget deficit, then you have to keep the size of expenditure volume lower. So that is not regarded as good policy for the any developing economy. Current account balance remains stable. It says remains stable. अच्छा, एक चीज मैं करेक्ट करूं, आप इसको चेक भी करिएगा। जो ये हमारी बता रही थी करंट अकाउंट डेफिसिट, इट आई थिंक कि इट इंक्लूड्स द अदर देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफिसिट आल्सो। मतलब ये है कि ये आपकी जो टोटल लेनदारी और टोटल देनदारी, यानी कि टोटल आपको कितना पे करना है और टोटल आपका बाहर से कितना इनकम आया है, द गैप बिटवीन बोथ थिंग कैन बी कॉल्ड एज करंट अकाउंट डेफिसिट। और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप है, दैट विल बी कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। बट जनरली प्रैक्टिकल टर्म में करंट अकाउंट डेफिसिट यूज होता है जो आपका व्यापार घाटा, लेबर मार्केट डेवलपमेंट। आप लोग इसको चेक भी कर लीजिए। मैं भी यही मानता था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन बट आई थिंक कि आपकी लेनदारी और देनदारी का जो घाटा है ना, वो करंट अकाउंट डेफिसिट। ये तो बहुत पेजेज है, अभी हमको हाईलाइटर में भी जाना है, अभी मैं मोटा मोटी आपको दिखा देता हूँ। और भी एक नया टर्म आता है कि आपका वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो कितना है। तो अब ये डाटा आया था कि 55 करोड़ से लेकर के 70 करोड़ लोग आपके जो है ना वर्किंग पॉपुलेशन हो चुके हैं। एक डाटा आया है कि कंजम्पशन टोटल ग्रॉस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, तो 56% आया है। और उसमें जो है सरकार का भी खर्च है। फिस्कल डेवलपमेंट एंकरिंग स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन। अब जो है इंडिया का फिस्कल कंसोलिडेशन करीब करीब पूरा हो गया है। अब मुझे लगता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट उतने ही करंट अकाउंट डेफिसिट का फिस्कल डेफिसिट जो एफआरबीएम एक्ट का 3.5% है वो उस पे आ जाएगा। सस्टेन्ड रेवेन्यू बायलेंसी सपोर्ट्स कंसोलिडेशन। जब जीएसटी रेट कट किया गया तो कई लोगों ने कहा कि सरकार का रेवेन्यू घट जाएगा तो सरकार अपने खर्चे कैसे पूरा करेगी। तो सरकार का ये सोचना था कि कम कर दर रखो और उसका बेस बढ़ाओ। ये आपको पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ाया जाएगा, लिसन टू मी, कि मतलब कि टैक्स का रेट कम करो लेकिन उसका बेस बढ़ाओ। तो मतलब कि आपका वॉल्यूम ऑफ बढ़ा चुका है सर, वो बढ़ जाएगा, सच रेट बिन कम टॉट होगा, पर यूनिट रेट कम होगा। तो वही जीएसटी में भी सोचा गया कि ज्यादा बिक्री होगी तो हम 5% और 18% से भी ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर लेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे से कि देयर इज अ सस्टेन्ड रेवेन्यू बायलेंसी, बायलेंसी मतलब कि उसकी लिक्विडिटी बनी हुई है, रेवेन्यू कम नहीं हो रहा है। और क्योंकि मैं कहता हूं आप लोगों को कि आप लोग न्यूज़पेपर रोज रोज पढ़ा करिए, तो उसमें रोज के रोज आंकड़े आते हैं कि सरकार का इस बार इनकम टैक्स का जो रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू, इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू और जीएसटी का तो हर महीने आंकड़ा निकलता है। आपको मालूम है मोटा मोटी जीएसटी से कितना रेवेन्यू आता है हर महीने टोटल रेवेन्यू? आप लोग न्यूज़ पढ़ेंगे तो पता चलेगा।
इस बार रिकॉर्ड 2,18,000 करोड़ एक महीने का जीएसटी आया था। वो किसी इस महीने में नहीं, नेचुरल नॉर्मली अप्रैल महीने में ज्यादा आता है, और जबकि कोरोना काल में ये 1 लाख करोड़ तक सीमित रह गया। तो ये सोच कि हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, और इकोनॉमी ग्रो करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका दो तरह का फायदा है। इसका एक तो फायदा है कि सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है तो वो सरकार जो है अलग अलग सेक्टर में खर्चे ज्यादा करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो ये साइकिल चलता रहता है इकोनॉमी का। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को ये जरूर जानना चाहिए इस साइकिल के बारे में। फ्रेंड्स, इन द कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कॉर्पोरेट टैक्स, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स, जो इनकम है, जो इंडिविजुअल है, तीसरा पर्सनल इनकम टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अदर्स, ये सब मिलाकर के जो है डायरेक्ट टैक्स बनते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भी हालांकि इनडायरेक्ट में आता है, लेकिन डायरेक्ट इस मामले में है कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है वही टैक्स पे करता है। वो ऐसा नहीं है कि आप कोई रेंटल रखते हैं तो रेंटल नेवर पेज योर वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, इट हैज टू बी पेड बाय ओनली प्रोप्राइटर ऑफ द प्रॉपर्टी। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन देखिए टोटल 22.4 25 में गया टोटल कलेक्शन साल का कलेक्शन, अभी करंट ईयर का भी चल ही रहा। देखिए अभी जो जीएसटी में चेंज लाया गया जिसको जीएसटी 2 कहते हैं, जीएसटी ऑन एग्रीकल्चर गुड्स, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री मशीनरी लोअर टू 5% फ्रॉम 12%। इस वजह से जो है इसकी वृद्धि ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड है। अब ऑटो पार्ट पे आइए तो इसमें जो 18% 28% से घटा के 18% ला दिया गया। बस, ट्रक, बस, पैसेंजर कार, एम्बुलेंस, ये सब 18% पर ला दिया गया। ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स पर भी जो है 18% का यूनिफॉर्म ला दिया गया। मोटरसाइकिल एंड कार, लाउड एंड स्मॉल कार्स डेफिनेशन हैव बीन मूव्ड फ्रॉम 40% स्लैब। एसी, टीवी, फ्रिज, इन सब को भी 28% से घटा के 18% पर ला दिया। टेक्सटाइल एंड लेबर इंटेंसिव गुड 12% से 5%। हैंडीक्राफ्ट के आइटम को भी 12 से घटा के 5% पे ला दिया, 5 कर दिया। ये सब चीज आपको बराबर देखते रहिए और अपने इकोनॉमिक्स के जनरल नॉलेज में रखिए, ये आप लोगों को बिल्कुल रखना चाहिए और इंटरेस्ट क्लियर कीजिए। ये केवल टीचर के पढ़ाने की चीज नहीं है, इसमें आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर जो है सर्विसेज सेक्टर में आएंगे, मेडिसिन, मेडिकल एंड इक्विपमेंट को भी जो है कई जगह 0 जीएसटी कर दिया गया है, कुछ आइटम में 12 से 5 और कुछ आइटम में केवल जो है 5% रखा गया है। होटल एंड पर्सनल सर्विसेज को भी आपको काफी घटाया गया है, 7500 तक का पर डे का केवल 5% रखा गया है। होटल इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिलेगा, 12% से घटा के 5% कर दिया गया। इंश्योरेंस को मैंने बताया था कि मेडिकल इंश्योरेंस को 0 कर दिया गया, तो इंश्योरेंस का भी दिखा रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे शोज ईच एंड एवरी डेवलपमेंट व्हिच हैपेंड इन लास्ट ईयर 1 ईयर। तो इसीलिए आप लोग को ये पढ़ना चाहिए। अगर बहुत बोझिल लगे लेकिन कभी थोड़ा बहुत समय दीजिएगा कि 10% भी आप अगर गेन करेंगे तो आप अपने लाइफ के अगले 5-10 साल में आपको पूरी मास्टरी और मैच्योरिटी हासिल हो जाएगी। ये डिविडेंड मतलब जो आपको शेयर बाजार में खर्च करते हैं, जो उसमें डिविडेंड मिलता है उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, उस पर भी लगता है, टीडीएस लगता है, उसमें एक्सटर्नल ग्रांट पे भी लगता है। इस तरीके का ये सब डाटा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने बताया था कि ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं होता,
जो सरकार की आमदनी हुई और कुछ इस पर खर्च कर रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के देखिए सब लोगों के पे अलाउंस, पेंशन, सब्सिडी, फर्टिलाइजर और फूड और पेट्रोलियम, नहीं हम लोग इसको बोलते हैं 3 F, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। 3 F जो कि करीब 3 लाख करोड़ सब्सिडी कंज्यूम करते हैं, और ये इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। फिर जो होगा डिफेंस होगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा, केवल यही आइटम जो है ना नॉन प्लान्ड या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। डिफेंस एंड रोड, रेलवे, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पाइप, ये सब जो है ना इसमें इंक्लूड नहीं होता। पब्लिक फाइनेंस में ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी वैसे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारा पार्ट पब्लिक फाइनेंस। मैंने बहुत पहले की क्लास में कहा था कि पैसेंजर रेलवे का जो पैसेंजर साइड है वो खर्चे ज़्यादा लेता है, आमदनी कम करता है। टोटल आमदनी का केवल 1/3 आता है रेलवे पैसेंजर में, और 2/3 जो है वो टोटल खर्चे का ले लेता है। और माल भाड़े में क्या है कि वो केवल 1/3 उस पर खर्च होता है, जबकि 2/3 आमदनी देता है। तो उसके लिए क्रॉस सब्सिडाइजेशन मैंने जो वर्ड यूज किया था, दिस इकोनॉमिक सर्वे इज आल्सो टेलिंग अबाउट दैट। क्रॉस सब्सिडी इन रेलवे ट्रैफिक एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। Tech-driven solution for improving efficiency in public expenditure। उसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। अब वो क्या बोलते हैं, मोबाइल आधार ऐप जो होता है वाला यूज करना। तो इसमें कई लाख करोड़ रुपए की बचत हुई सरकार को डिस्ट्रीब्यूशन करने में, जो लीकेजेज होता था अलग अलग तरीके से, सरकार का बजट का डेटा है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, मतलब कि जो पैसा सरकार नॉर्मल तरीके से बैंकों से लोन लेती है, विदेशों से कर्ज लेती है, वही जो है कैपिटल रिसिप्ट होता है, यानी कैपिटल का आगम होता है, और वही चीज खर्च किया जाता है ऑन सेवरल फ्रंट। तो सेवरल फ्रंट में क्या क्या है वो आपको भी दिखाया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे। डिफेंस में क्या, डिफेंस में जो इक्विपमेंट खरीदेंगे, आर्सेनल खरीदेंगे, तो वो चीज हो जाएगा प्लान्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन आप पे देंगे, सैलरी देंगे, डे टू डे का खर्च करेंगे, तो वो हो जाएगा नॉन प्लान। दो पार्ट है, किसी भी डिफेंस के दो पार्ट होते हैं खर्चे के, पेंशन, सैलरी एंड वेजेस, और दूसरा है डिफेंस आर्सेनल्स जो आप खरीदते हैं। ट्रेंड्स इन एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल। टोटल अमाउंट रिलीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और वो स्टेट को बांटती है, और कुछ स्टेट खुद जो है कलेक्ट करती है और उनका वो अपना पैसा होता है। तो आप बताइए कि स्टेट गवर्नमेंट किन किन चीजों से आमदनी प्राप्त करती है, आप लोग बताइए कोई। स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी का क्या जरिया है, जो वो आमदनी लेती है और खुद उन्हीं के पास रहता है। अब कुछ होता है कि सेंटर कलेक्ट करती है, लेकिन सेंटर उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को फिर ट्रांसफर करती है। आप लोग बताइए कुछ भी, जस्ट एज ए लेमैन आप बताइए, सोच के बताइए कि स्टेट गवर्नमेंट की कैसे आमदनी होती है, राज्य सरकारों की आमदनी। आप लोकल जो बॉडी है, जो नगर निगम और नगर पालिका, आप उन्हीं कैसे आमदनी करते हैं। SGST नहीं आपने कभी जमीन, किसी को जमीन और मकान खरीद के देखा है? तो उसका पैसा जो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगता है ना, वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाता। बिहार में तो वो बंद हो गया है, प्रोहिबिशन है। अदरवाइज जहाँ जहाँ पर दारू की भट्टी है, जहाँ पर शराब की दुकानें हैं, तो उस पर बड़ा ह्यूज टैक्स लगता है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तीसरा, जो आप पेट्रोल खरीदते हैं पेट्रोल पंप पे, उस पर सेल टैक्स लगता है, और आप देखते होंगे हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग रेट है पेट्रोलियम का। आप यूपी में जाएंगे तो वहाँ रेट कम है, बिहार में जो है ज़्यादा है, क्योंकि बिहार में स्टेट सेल टैक्स ज़्यादा है। बंगाल में जाइए, झारखंड में जाइए, अंतर मिलेगा। तो अंतर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता तो एक रेट होता, जैसे LPG पेट्रोलियम पर होता है एक रेट, केवल थोड़ा सा भाड़ा बढ़ जाता है,
लेकिन सेल टैक्स अलग अलग होता है क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट अलग से लगा है। लेकिन इनकम टैक्स जो सरकार केंद्र सरकार लेती है वह केंद्र सरकार लेती जरूर है, लेकिन उसे राज्य सरकारों को बाद में फिर ट्रांसफर करती है। और ये कौन कराता है, आप एक टर्म और जानिए, सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू का वितरण करने वाली कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? फाइनेंस कमीशन। देखिए आप लोग, देखिए फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद संविधान के आर्टिकल 280 चेक कर लीजिएगा, मैं मोटा मोटी याद कर रहा हूँ, के एक्ट के तहत फाइनेंस कमीशन है which is being instituted at every 5 years and that recommends how much state share will be given after collecting all kind of income tax, corporation tax and etc. अब तो जीएसटी भी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले रही है, लेकिन उसमें ब्रेकअप अंडर व्हिच एक्ट सर? अंडर व्हिच एक्ट अंडर फाइनेंस कमीशन बीइंग आप इंस्टीट्यूटेड? चेक करिएगा, अंडर 2 है, 280 है, 280 है। 280 है ना? हाँ, तो इसमें साइन करें 280 आर्टिकल के तहत हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन होता है जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिसोर्सेज का बंटवारा करता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और यूटी को कितना ट्रांसफर किया गया इसका डाटा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं मैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, जिस तरीके से विकास कार्य के लिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट हैज टू डिपेंड ओवर मार्केट बोरोइंग एंड ऑल काइंड ऑफ कैपिटल रिसीव्ड, same way for the development activity of the state government, they have to generally depend on the funds which they get from the center. जो उनका अपना इनकम है, जो मैंने बताया प्रॉपर्टी का, ब्रेवरी का, सेल टैक्स का या वगैरह वगैरह, वो भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च कर देते हैं, पुलिस पे खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर उनको रोड बनाना है, अगर उनको इरिगेशन कैनाल बनाना है, तो दे हैव टू डिपेंड ओवर द सेंटर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। ये बताइए, स्टेट गवर्नमेंट को अपने विकास कार्य के लिए ज्यादातर किस पर डिपेंड करना पड़ता है? बोलिए आप लोग। स्टेट गवर्नमेंट, अभी हमने बोला ना सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्टली डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करना है। और सारी सरकारों को अपने डेवलपमेंट वर्क के लिए किस तरीके के फाइनेंस पर डिपेंड करना पड़ता है? फाइनेंस कमीशन, मार्केट बोरोइंग, जो वो बाजार से उधार लेती है। अब आप कहेंगे इतनी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वो क्यों नहीं खर्च करती है? तो वो उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे से, डिफेंस के खर्चे से, इंटरेस्ट सब्सिडी के खर्चे से, उससे उनको बच ही नहीं पाता है, ठीक है। मोटा मोटी याद रखेंगे ना आप लोग? यस सर। ये सब अलग अलग डाटा है, मुझे लगता है ये पढ़ते हुए आगे तक चलना चाहिए। और ये है डेफिसिट इंडिकेटर्स, डेट प्रोफाइल ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने बोला ना मार्केट बोरोइंग जो करना पड़ता है वो यही है। देखिए, जब डेट भी पढ़ेंगे आप, पब्लिक डेट एक चैप्टर है, पब्लिक डेट, तो उसमें आपको पता चलेगा कि डेट में भी जो है सो मेनी वैरायटी, जो सरकार पीएफ का पैसा काटती है, ईपीएफओ का काटती है, वो पैसा भी सरकार के पास एक तरह से डेट की ही तरह है। सरकार जो है बैंकों से रोज रोज के खर्चे के लिए ट्रेजरी बिल लेती है, फिर उन्हें चुकाती है। तो ये तरह तरह के मद में तो कहा जाता है पब्लिक डेट जो है वो जीडीपी का 80% तक जाता है, यानी कि सब वो देनदारी है एक तरह से। स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग डेट होता है, जनरल गवर्नमेंट फाइनेंस। अब ये ज्यादा पॉलिसी मैटर है, अब इसको हम लोग रहने देते हैं।
economic survey is a very big event, and followed by general budget, which will be presented on day after tomorrow on the 1st February. It has become a tradition for the last 15 years कि 1st Feb को ही budget पेश होता है. Earlier it used to be presented on the last date of the month February. 28 February जो है budget पेश होता था, but later we decided कि थोड़ा 2 महीने का टाइम मिलेगा 31 मार्च तक, तो हम सरकार के विभाग के सारे लोग अपने खाते बही इनकम एक्सपेंडिचर का अच्छे से हिसाब लगा लेंगे, एंड देन द फाइनल estimate will come after the 1st April. So that is why it has been prefixed, general budget has been prefixed by 1 month, and it is being presented on 1st February for last 12 or 15 years. I think Yashwant Sinha once presented his budget on 1st February during the Bajpayee. So what I am telling that the economic survey, earlier there was a tradition of presenting real budget also separately, but it was stopped during the Modi government only because there is no need of presenting it separately, and it saved around 10,000 crore of rupees of government of India, because they told that it will be a part of general budget, and since the general budget indicates the whole finances of the country, so it will include real budget also. There is no need of presenting it separately. What grants will be introduced, what new schemes will be introduced, that will be mentioned in the general budget document. So economic survey is a big achievement, so it is being distributed into a different section so that we can understand easily about the different sector of economy, and we have a better knowledge of and better status knowledge of different sector of Indian economy. So I will come. The first is India GDP growth and estimated. It is 7.4%. You can, as I told, 6.8 to 7.2% it has been grown, but it has more likelihood of crossing 7.4% when the final result will come. And these are the things which I have tell you in the first chapter, national income. Also many students have made their assignment. Bishu have already presented his assignment, so you may understand this. What is the national income? How it is being measured? So you just go through the latest data in terms of NNP, GDP, per capita income, and etc. Okay. ये बैक करने वाला सर पीआईडी वाला बस हाँ ये पीआई ना सर पीआईडी ना ये हाँ यस सर नहीं मैं बैक में जा रहा था। हाँ सर बैक अच्छा ये दिस वन ये ना यस the second highlighter is highlights economic survey. Okay, ये आप देखो fixed potential growth for India estimated GNP central revenue receipt rose by 9.2%. मतलब कि जो आपकी टोटल इनकम हुई है वो 9.2% है, बढ़ी है, 9.2% बढ़ी है। ₹5.02 crore bank account opened as of March 25 under Prime Minister Jan Dhan Yojana. ये इसका फिगर दिखा रहा है। 36.63 crore in rural areas and urban and semi-urban areas. यानी जन धन जो आपने स्कीम नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, it just created a financial empowerment of millions of citizens. So it opened around 55 crore bank account. Out of this, 36 crore is belong to rural and semi-urban area. Number of unique investors crossed the 12 crore mark. This is also a very good, or you can say it's a very significant growth in terms of capital market growth in India. पहले 2 या 3 करोड़ लोग जो है ना वो अकाउंट खोलते थे अपना कैपिटल अकाउंट, वो कौन सा एक वो होता है, एक
बजाता है स्पेशल अकाउंट खोलना होता है इफ यू वांट टू शेयर ट्रेडिंग इन द शेयर मार्केट। तो उसमें अब लोगों ने यूपीआई के जरिए भी उस तरीके का चीज लोग कर लेते हैं, यूपीआई कहते हैं डिजिटल के जरिए भी, डिजिटल ऐप के जरिए भी। तो अब वो संख्या जो है ना 12 करोड़ मार्क को चली गई, which used to be only 4-5 करोड़। तो यह एक अपने आप में डेवलपमेंट है, and people are able to know what is called SIP। SIP जो आप मंथली जो म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं, that is called SIP and like that। India's share of global merchandise exports doubles from 1% to 1.8% between 2005 and 2024। ये अलग अलग जो है हाइलाइट्स है जो कि आप लोग जानना चाहिए। सर्विसेज एक्सपोर्ट टचेज ऑल टाइम हाई 387.6 billion in 25, growing by 13.6% mark। It happened only because America didn't impose its tariff on service trade, it only imposes its tariff on merchandise। India's food grain production it crossed 30 lakh metric ton। आज मैंने सुबह देखा था 33 पॉइंट समथिंग, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि इंडिया में 35 करोड़ टन ऑफ फूड ग्रेन्स। 254 यानी कि 32 पॉइंट समथिंग करोड़ टन था, मिलियन टन लाख मीट्रिक टन में है, तो इसको करोड़ टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। More than 4.09 lakh crore has been released to eligible farmers under PM किसान since its inception। ये तो चल रहा है पिछले 15 साल से ये दिया जा रहा है, तो 15 साल नहीं सॉरी 2000 नहीं 7 साल 7 ईयर से दिया जा रहा है। तो इसमें अब तक हर किसान को 500 रुपये पर मंथ दिया जाता है, तो अब तक 4 लाख करोड़ जो है इतने साल में बांट दिया। मैन्युफैक्चरिंग ग्रो बाय 7.72%। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव 14 सेक्टर में दिया जा रहा है। आप लोग भूल गए कि अभी भी याद है पीएलआई, व्हाट इज कॉल्ड पीएलआई? So what does it mean? Basically giving cashbacks on incremental sales and like that. And it helps in what term? Basically It makes you more competitive, more sale oriented, and you try to sell more, produce more, so that we have an incentive on behalf of government of India। High speed corridor 10-fold from 550 kilometer to 5364 kilometer। India is the world's third largest domestic aviation market, with the number of airports increasing from 74 in 14 to 164 in 2025। ये डाटा ऊपर नीचे होता रहता है, इट इज अ मैटर ऑफ चेकिंग, आप लोग इसको चेक करते रहिए। अब इसमें ग्रीन फील्ड कितना है, ब्राउन फील्ड कितना है, जिसमें संजीव का बता रहे थे, इसमें चेक हिस्टोरिकल अराउंड फॉर डिस्कॉम मतलब मालूम है क्या? इलेक्ट्रिसिटी में डिस्ट्रीब्यूशन